because as I already told, the apartment location matters in Berlin. If they want like a private room, तो कितना बजट होना चाहिए स्टूडेंट्स का? पहली चीज मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्कैम से बच के रहें, और जो शेयर्ड रूम की जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो अराउंड अपने तौर पे ही सोचो कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और काश मुझे ये चीजें पता होती जब मैं इंडिया से आ रहा था। डोंट ट्रस्ट एनीबडी फॉर अकोमोडेशन, फॉर जॉब और फॉर द वीजा एज वेल। टू ऑफ माई लाइक ओपिनियंस आई वुड से, अगर ये मेरे को पता होती सो कई बार आप यहाँ पे आओगे तो जॉब ढूंढना आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। Because the biggest mistake which we do, the consequences which we face is not now but later when we move out. और तेजस ने भी लाइक जो भी सारे पॉइंट्स बोले, तो उन सबको हमें फोकस करना है। और सो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अगर स्टूडेंट के और अगर कोई चांस से काटा पे आ रहा है तो आपका जो एक मंथली एक्सपेंस है वो कितना होता है। तो वन बाय वन वी विल शेयर आवर मंथली एक्सपेंसेस एंड वी विल स्टार्ट विद So basically ना monthly expense में divide करूँगा 4-5 categories में। तो first is technically your rent, then your travel which is your Deutschland ticket, then insurance money which we actually pay monthly, or your telephone expense whatever you do for communication, and technically your daily groceries कितना खरीदोगे। So this is what it is। ये तो आपका कटना ही कटना है per month। So for me the average fixed expense which I am doing right now is around 700 euros। Yeah, I will be more than happy, you can share your thoughts कि how. Sure, yeah. So for me, it's like close to 750 per month, and I like for the past 9 months, I've been spending like short 750 per month for my monthly expenses, I would say. So for you it was around 700 fixed per month. 700 is the fixed amount, and for a student like who's doing his master it's like 750. Yeah, so yeah, Tejas. So for me also 700 euros I pay every month। ठीक है, लेकिन अभी मैं स्टूडेंट डॉम में रहता हूँ, तो अगर आप वैसी जगह पे रहते हो तो you can easily get, easily नहीं बोल सकता, इसके लिए वेटिंग पीरियड रहता है। तो 450-500 में आपको एक खुद का स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है। तो अगर आप जर्मनी में आते हो तो आप अप्लाई करके रख देना, पता नहीं आपका लग जावे चांस वहाँ पे। तो अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको इंडिविजुअल रहना पसंद है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। So personally I pay like 500 for the shared room because I live in a like very posh area, Charlottenburg. It's a very happening place in Berlin. So overall expense for the month goes around 800 euros for me, including Deutschland ticket, insurance and grocery, miscellaneous everything. And like sometimes in some of the months when you are planning to go to some other country to just like visit, travel or whatever, then it like then it might goes 200, because 300 euro up after and down. all the stress, But we need some as we vacation. discussed, like from 700 to 800 is a fixed amount which you have to like pay. उतना जाएगा, उसके ऊपर नीचे तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। So let's guys, like let's now we can talk about accommodation, right? So everyone can share like how they are living and how much they are paying. So yes, let's start with you, Tejas. Yeah, as I already shared that I live in student dorm, तो जहाँ पे मुझे 450 euros में मिला है स्टूडियो अपार्टमेंट। इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको वेटिंग लिस्ट में इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपका नंबर आता है देन इट इज गुड फॉर यू। अदरवाइज अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो इट डिपेंड्स आप क्या प्रेफर करते हो। ठीक है, लेकिन शेयरिंग में 400 से 450 उतना मिलता है आपको। Okay, so for me, it's like I pay 400 per month as a fixed rent, and like we are sharing an apartment between 3 people, and yeah, like the apartment scenario for me. So basically I live near to Hauptbahnhof, which is the central station of Berlin, which is technically the heart or kind of everything nearby. So I pay around 450 euros and I share technically shared apartment. So yeah, so per month for me 450 for an apartment. I pay 500 euros in a shared apartment because as I already told, the apartment location matters in Berlin. Every area has their own different rates. So yep, it's a bit expensive for me, but the connectivity and all the facilities which I am getting, it's really good. So it's worth paying. Okay, so मैं और हर्षिल तो काफी टाइम तक हम लोग शार्लेटनबर्ग में रहे हैं और अभी भी रह ही रहे हैं, लाइक कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो हर्षिल को काफी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है। तो हर्षिल मुझे ये बताओ, सपोज इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग एंड उसका जो बजट है वो 450 के अराउंड है, तो क्या एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं? एंड इफ दे वांट लाइक अ प्राइवेट रूम, तो कितना बजट होना चाहिए स्टूडेंट्स का? सो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो शेयर्ड रूम प्रेफर करते हैं, तो पहली चीज मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्कैम से बच के रहें। और जो शेयर्ड रूम की जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो अराउंड 425 to 450 होती है, और जो प्राइवेट रूम की कॉस्ट होती है वो अराउंड 600 to 650 होती है। तो अगर आप बर्लिन के थोड़ा आउटकट्स में जाओगे तो ये रेट्स वेरी कर सकते हैं। आपको प्राइवेट रूम हो सकता है
500 तक में भी मिल जाए, लेकिन वो आउटकट्स हो जाएगा। अगर आप मेन बर्लिन सिटी की बात करो तो 600 to 650 यू हैव टू पे। बेसिकली लाइक जो बर्लिन सिटी है वो 3 जोन्स में लाइक डिवाइडेड है, ए बी सी। सो जो हर्षल कह रहे हैं वो ए और A बी zone जोन का रेंट है, हम्म। बट अगर आप सी में जाओगे, थोड़ा सा और आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो रेंट नीचे जा सकते हैं। बट इट्स लाइक कि आपका यूनिवर्सिटी और अगर आप कहीं पे काम वगैरह भी कर रहे हो तो अप एंड डाउन करने में थोड़ा सा थोड़ी सी time प्रॉब्लम, ज़्यादा कनेक्टिविटी लगेगा। की प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइज नाउ वी विल क्लोज दिस वीडियो। सो आप में से किसी को भी अगर कोई क्लोजिंग थॉट देना है या कुछ ऐसा बोलना है जो आपको लगता है कि यार, अगर अपने तौर पे सोचो कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और काश मुझे ये चीजें पता होती जब मैं इंडिया से आ रहा था, चाहे आपका चांद से काटा है, चाहे हर्षल का मास्टर्स था, आपका भी आरजे का मास्टर था, तेजस का भी मास्टर्स है, तो कोई एक ऐसी छोटी सी चीज शेयर करो जो आपको ऐसा लगता है कि कैन बी इम्पोर्टेंट, कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर पर्सन हु इज लाइक गोना कम इन लाइक दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। मेन इम्पोर्टेंट ये चीज है कि डू योर ओन रिसर्च। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, डोंट ट्रस्ट एनीबडी फॉर अकोमोडेशन, फॉर जॉब और फॉर द वीजा एज वेल, because there are lot of misinformation going in the market. So own research is very much important for everything, because you are traveling out of India, out of your country. Maybe you are from any other country. So yeah, that's what I should recommend everybody. Okay, so I'll just share two of my like opinions. I would say अगर ये मेरे को पता होती, so I know that people should learn German from India itself, and it's very much important that at least they try to cover till A2 part or like start of the B1, so that after landing over here, it's like completely easier to navigate through all the processes, be it to like official documentations and other stuff. And other thing is, I would again emphasize on like focusing more on your course rather than focusing more on part-time, because it's the most important thing that you should focus on. These are my thoughts. What I would like to recommend you all that कई बार आप यहाँ पे आओगे तो जॉब ढूंढना आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको जर्मन नहीं आती, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप 4-व्हीलर सीख कर आना। अगर आपको 4-व्हीलर आती है, आपके पास लाइसेंस है, देन यू स्टिल हैव वेरी गुड चांस टू गेट जॉब एट वेरी इजीली। तो वो एक चीज आप करके आ सकते हैं। Final thought from me is technically learn, trust your instincts. You should trust always कि what is it's in your head. Don't think कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उसके पीछे जाए. So first, trust your instincts and do not, I say do not pay anything upfront. Once everything is done, you sign a contract for accommodation, that is the time you pay money. And also golden tip, whenever you are signing a contract, ensure you read that contract, because the biggest mistake which we do currently, we don't know German language, we just sign blindly, and the consequences which we face is not now but later when we move out. So basic thing, whatever you're signing, read it twice. And it's okay to be slow. Don't hesitate stuff like I want to do this. Like, it is okay to be slow, and at least I think you got my point. Think from your heart and don't listen to others. Think what is right for you and just go for it. And from my side, I will just say कि यार, अभी हम लोगों ने काफी लंबे टाइम तक बात की, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, सो इट्स नॉट लाइक वी आर सम एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक्स और हमने सारा पूरा जो जर्मनी का एक जो गेम है या जो पूरा एक लाइफ है वो हमने डिकोड कर लिया है। नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक हमें कुछ चीजें पता है जो हम चाहते हैं कि एज अ व्यूअर या जो भी लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर ये देख रहे हैं वीडियो, तो यार कुछ छोटी छोटी चीजें जो अगर आप समझ के आओगे, सोच के आओगे, उसके हिसाब से प्लानिंग करके आओगे, तो योर लाइफ हियर वुड बी लिटिल ईजियर देन इफ यू आर जस्ट कमिंग हियर ब्लाइंडली। सो क्लोजिंग थॉट इज फोकस ऑन द लैंग्वेज। आप अपने एक्सपेंस भी देख कर आओ कि यार क्या कैसे करना है। यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो अलग है अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, टू बी स्पेसिफिक, और जो ब्लॉक अकाउंट है वो अलग है। दोनों को मर्ज करके अगर यहाँ पर आने का सोच रहे हो, दैट्स नॉट गुड। देन भाई का भी था कि यार आपको अपनी स्टडीज पे भी फोकस करना है। आप जिस अगर कोर्स के लिए आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो, मैनेजमेंट का कोर्स है, साइंस पे, तो अपने साइंस का या जो भी आपका कोर्स है उसे भी कंप्लीट करो। उसे डिले मत करो कि यार ठीक है अब आ गए यहाँ पर, वीजा मिल गया है, अब कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करते रहते हैं, कोर्स आराम से लाइक सेमेस्टर ब्रेक लेंगे, ये करेंगे वो चीज अच्छी नहीं है। और तेजस ने भी लाइक जो भी सारे पॉइंट्स बोले, तो उन सबको हमें फोकस करना है। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो शुक्रिया, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you टाटा। so much.